Some look for beautiful places and some make places beautiful. Today our speaker is the one who makes places beautiful with his skillful multifunctional design. Madhur Sharma, the architect student, 21 years old, designed multifunctional furniture called Arpol. Since 2018, he had designed 10 more furniture pieces, 7 of which are multifunctional. Designing multifunctional and shape transformable furniture with some surprising character in aesthetics and functionality is his hobby. Minimum usage of material with maximum shape transformation is the USP of Madhur's furniture design, which led him win many awards. Some of them are Smart Habitat Foundation Awards, Act of Green Design Awards, Most Innovative and Creative Student of the Year 2016 and 17. Apart from designing, he loves to read, write about Hindi movies, political parties, and leaders. Hi Madhur, how are you doing? Hello, ma'am. I'm fine. Welcome to Pull It Pod. It's our pleasure to have you. So, thank you, ma'am. Thank you. Madhur, at the beginning, throw some light on your background. Ma'am, first of all, I would like to thank Pulitpod for inviting me on your platform. Actually, I am an architecture student from APJ School of Architecture and Planning, and I am a final year student. And I am architect by choice and furniture designer by chance. And मैंने 2017 में पहला फर्नीचर डिजाइन किया था अपना। वो हमने एक बारबेक्यू नेशन के लिए एक रेस्टोरेंट है ग्रेटर नोएडा में, उसके लिए डिजाइन किया था, बट वो इतना फेमस नहीं हुआ था। वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। या Very nice. Nice to hear that. Madhur, how did you get the idea to make multifunctional furniture? एक्चुअली मैम, जब मैं अपने हॉस्टल में रहता था तो मेरा हॉस्टल का रूम ज्यादा बड़ा नहीं था, तो मुझे वहां पे चेयर की भी रिक्वायरमेंट होती थी, टेबल की भी होती थी, साइड टेबल की भी, बेड की भी, लो फ्लोर सेटिंग की भी। तो वहां से मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा फर्नीचर बनाया जाए जो सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करे। एंड वहां से जो हॉस्टल लाइफ एंड जो मेट्रो सिटीज की लाइफ है, वो उसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। तो मैंने सोचा था जो लोग छोटे छोटे क्यूब्स में रहते हैं, एक्चुअली उनके घर नहीं होते, क्यूब्स होते हैं, तो जो छोटे छोटे क्यूब्स में रहते हैं वो भी सेम प्रॉब्लम फेस करते होंगे। तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूजर के लिए हमने ये फर्नीचर डिजाइन किया था। एंड वहां से मतलब मुझे आइडिया आया था कि ये हम लार्ज मतलब एक लार्ज ऑडियंस को हम टारगेट कर सकते हैं एक छोटे से डिजाइन से। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सो आपकी जो सिचुएशन थी उसकी वजह से यू गॉट द आइडिया ऑफ मेकिंग दिस मल्टीफंक्शनल फर्नीचर। या एक्चुअली जब हमने फर्नीचर डिजाइन किया था तो हम सस्टेनेबिलिटी को भी ही उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो फर्नीचर के साथ साथ इन्वायरमेंट, जो सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिकल। तो इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल के साथ साथ सोशल फैक्टर को हमने ज्यादा टारगेट किया, क्योंकि लोगों को सोशली अवेयर करना फर्नीचर्स को लेके कि वो कितने सस्टेनेबल फर्नीचर यूज कर रहे हैं। एंड इन्वायरमेंटली हम देखें तो वुड को हम कम यूज कर रहे हैं। हम 1 क्यूबिक फीट ऑफ वुड में ऐसा फर्नीचर बना रहे हैं जो 14 तरह से यूज हो सकता है। एंड उसकी कॉस्ट कटिंग भी हमने किया। अगर हम 14 फर्नीचर अपने रूम के लिए लेके आएंगे तो वो ज्यादा कॉस्ट करेंगे ऑब्वियसली, और हम एक फर्नीचर लेके आएंगे तो उसकी कॉस्ट कम होगी। तो हमने तीनों जो पैरामीटर्स हैं उन्हें टारगेट किया एक फर्नीचर से, एक डिजाइन से। That's great to make in one furniture, not one furniture, maybe like more than one furniture cost and the material you are making multifunctional furniture for like almost equal to 14 furniture. Yeah, So I it think, can be converted into 14 shape. oh, okay, all right. I think that's an excellent invention and innovation, especially in a country like India, in and city like Mumbai, where the shortage of space is way too much. Yeah, yeah. Thank you, ma'am.
मधुर, हमें ले चलिए through the process of making your ओके product and the challenges that you faced while making the product. ओके मैम। मैम एक्चुअली जब हमने डिजाइन को कॉन्सेप्चुलाइज किया था तो सबसे पहले हमने ये पेपर से बनाया था, एंड इसका जो इंस्पिरेशन हमें मिला था वो हमें ह्यूमन बॉडी से मिला था। एक्चुअली ह्यूमन बॉडी भी एक फर्नीचर की तरह है, ये मेरा परसेप्शन है। तो जो इसका जो ज्वेलरीज हैं, जो फर्नीचर की जो ज्वेलरीज है, उसे मैंने ह्यूमन बॉडी से कंपेयर किया, एंड वहां से मुझे इसका आइडिया आया। उसके बाद मैंने पेपर से मॉडल बनाया, फिर हमने वर्कशॉप में हम इस मॉडल को लेके गए थे। जब ये इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है, जब हमने ये डिजाइन किया था, तो ये सिर्फ 6 शेप में कन्वर्ट हो सकता था, Oh, एंड हमने इसमें छोटे छोटे ऑल्टरेशन किए डिजाइनिंग के बाद और डिजाइनिंग के टाइम में, और हम इसे इसके नंबर को 14 तक लेकर गए। तो ये एक डिजाइन प्रोसेस का पार्ट था कि हमने 6 शेप के लिए मतलब इनोवेट किया था, डिजाइन किया था, और हम इसमें 14 शेप तक हम इसे लेके गए थे। excellent. एंड फिर हम इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, कॉस्ट कटिंग आ जाता है, मॉड्यूलेशन आ जाता है, सिंपल ज्वेलरीज आ जाते हैं, और ज़्यादा एडवांस हार्डवेयर यूज करना नहीं है, वो अवॉइड करना है। मटेरियल की क्वालिटी को हम लेके आएंगे, जो मटेरियल जैसे वुड है तो वुड में ही हम कारपेंट्री जॉइंट्स बनाए, वो सारी चीज़ें हैं जो मेरे डिजाइन का पार्ट है, डिजाइन एंड डिटेल्स का। So it has gone through lots of research and ups and या downs, और on the process लगता है क्या ये evolve हुआ है furniture. हाँ जी मैम। हाँ, और मधुर, अब हमें पता चल गया है how the process looks like, what were the challenges you faced. लेकिन एक चीज नहीं पता चली, that how your product became so famous, or do you think it hasn't got the popularity it deserved till now? क्या दिस कहना इज है? वेरी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली मैम ये मेरा मानना है कि हम जितना काम करते हैं उतना उसे प्रमोट भी करना चाहिए। मैं 50% डिजाइनिंग करता हूँ, 50% प्रमोशन पे ध्यान देता हूँ। तो एक्चुअली जब हमने फर्नीचर डिजाइन किया था, तो ये 2018 का डिजाइन है। तो सबसे पहले आर्किटेक्चर प्लस डिजाइन मैगजीन में ये पब्लिश हुआ था। फिर उसके बाद कुछ लोगों को हमने अप्रोच किया, कुछ लोगों ने हमें अप्रोच किया, तो वो एक एंडलेस साइकिल चलती आ रही है। तो हाँ, हम एक वीकेंड पे मतलब लोगों को लिखते हैं, जो मैगजीन्स हैं, जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, कि हमारे प्रोडक्ट को पब्लिश करें, डिजाइन को पब्लिश करें। फिर जब वो पब्लिश होता है तो कुछ लोग उन आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, तो वो खुद हमें अप्रोच करते हैं। तो वो चलता रहता है, बट हमें ये चैनलाइज करना पड़ता है। एक्चुअली जब हम इसे पब्लिश होता है तो इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, अभी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो इतना लैंड अप नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट को हम एक साथ कैटर कर सकें। तो इसलिए हमें वो प्रमोशन थोड़े थोड़े टाइम बाद रोकना पड़ता है। अच्छा, समझ या गया। So still you are working on the marketing part of your product, हाँ or जी मैम। जी. So you are expecting it to become more popular because this product is the need of an hour. या Mhm. दिस प्रोडक्ट इज द नीड ऑफ एन आवर, एंड अभी हम इसे प्रमोट कर रहे हैं, फिर हम इसे कमर्शियली सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम इसे प्रमोट करेंगे, तो वो एक ट्रू एंड प्रमोशन चलता रहेगा मैम, साथ साथ वो दोनों काम होते रहेंगे। Uh, I'm sure. And I hope more and more companies look into it who are into furniture and designing, and you get more reach, because your product is, especially, as I said, it's a need of an hour out of box, and one need to inculcate such furniture in their day-to-day life to make their living uh, easier and more decluttering your space. Uh, या that takes me to my next question, Madhur. What are your future plans? Can we expect more of similar multifunctional furniture, or you are now thinking of inventing something completely different? मैम इसके बाद अभी तो हमें मतलब इसे ही कमर्शियली सक्सेसफुल बनाना है, एंड जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है जिस पे मेरा काम चल भी रहा है, और ऑलमोस्ट 90% वो वर्क कंप्लीट हो गया है। अभी हम इंडिया का सबसे मल्टी फंक्शनल फर्नीचर पे वर्क कर रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन द मोस्ट मल्टी फंक्शनल फर्नीचर ऑफ इंडिया इन मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वुड। तो Oh, हम उसे डिजाइन करने के बाद हम उसे गिनीज बुक तक लेके जाएंगे, लिम्का बुक, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तक लेके जाएंगे, और उसमें अभी हम
ये वाला जो डिजाइन है हमने इसमें लाइंस में वर्क किया है। जो नेक्स्ट डिजाइन है जो अभी हम दिसंबर लास्ट वीक तक हम उसे सॉफ्ट लॉन्चिंग उस प्रोडक्ट की होगी, तो हम उस डिजाइन में वॉल्यूम्स में हमने प्ले किया है। तो उसमें आपको मतलब सारी शेप्स मिलेंगी, चेयर टेबल मिलेंगी, बट उसकी जो शेप्स है, जो जो यूजेबिलिटी है वो डिफरेंट हो गई है, तो हमने वॉल्यूम्स में प्ले किया है। या तो वो हमारा नेक्स्ट टारगेट है। और अभी हमारे पास इंडिया से हर स्टेट से ऑर्डर्स हैं, और इंटरनेशनली भी हमारे पास कनाडा से, यूके से, यूएसए से, साउथ अफ्रीका से भी है। तो अभी हम उस पर भी वर्क कर रहे हैं, तो ये साथ के साथ ये सारी चीजें चल रही हैं। एंड इंडिया से हमारे पास लक्षद्वीप से है, बंगाल से है, मतलब कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ से हमारे पास ऑर्डर्स ना हो इंडिया से। Oh, that's great, and we as a Pulit, we are very happy for you because you are doing something which is in line with what we are doing, and protecting environment, making best use of our items around our space. That's the goal of Pulit, and I wish you all the very best for your future endeavors, and I hope all this collaboration helps you to reach to the final goal that you have set for your team. या मैम एक्चुअली हमारा आइडिया भी वही है, हम इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ सोशल सस्टेनेबिलिटी को भी प्रमोट कर रहे हैं। मेरा एज अ डिजाइनर जो आइडिया है, जो मल्टी फंक्शनल एंड सस्टेनेबल फर्नीचर्स है, उसके लिए मैं एक आइडिया सेट करना चाहता हूँ सोसाइटी में, कि उनके लिए इसकी अडेप्टेबिलिटी बढ़े यूजर्स के बीच में। हाँ, हाँ, बहुत आपका आइडिया सुनकर बहुत खुशी मिली, एंड आई होप इसका इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द हो, ताकि हमारी जो आसपास में जो एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो एटलीस्ट थोड़ी रिड्यूस हो आपके कंट्रीब्यूशन से। या Madhur, अब हमने we spoke lots of about your invention, about your work, about your background. अब quickly थोड़ा सा rapid fire कुछ questions हो जाए। ओके 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 ओके, हाँ जी मैम। The very first question is, what is your favorite multifunctional product apart from your own? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली मैम मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट देखे, मल्टी फंक्शनल देखे। अब मैं ये नहीं बोल रहा मेरा सबसे अच्छा है, बट 14 तक कोई नहीं गया है। Okay. तो अभी मुझे, हाँ, एंड अगर हम डिजाइनर्स की बात करते हैं तो निंडो डिजाइन्स हैं जापान के, वो बहुत अच्छा फर्नीचर बनाते हैं, जिनका फर्नीचर पर्सनली मुझे पसंद है, जो सस्टेनेबल फर्नीचर पर वर्क कर रहे हैं। बट जो मल्टी फंक्शनल फर्नीचर्स लोग बना रहे हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, और वो बहुत ज्यादा महंगे फर्नीचर होते हैं जिसे कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो सस्टेनेबल नहीं है, वो सिर्फ मल्टी फंक्शनल है। हमारा मल्टी फंक्शनल के साथ साथ सस्टेनेबल भी है। Okay. So it means the या answer is your own furniture. या No problem. The next question is, which is your favorite website? वेबसाइट इज माय क्लाइमेट जस्टिस वेबसाइट है, वो बहुत अच्छा सस्टेनेबिलिटी के बारे में लोग बताते हैं, तो उससे मैं पढ़ता हूँ। Okay. And the last rapid fire question is, your favorite sustainability book? फ्यूचर अर्थ, Future Earth. Uh-huh. फ्यूचर अर्थ इज माय फेवरेट सस्टेनेबिलिटी बुक। Uh-huh. With that, thank you so much, Madhur Sharma. It was great talking to you. I got lots of insight about the furniture aspect of that world. But before you leave, I definitely ask you a sustainable tip or message for the students. ओके, एक्चुअली मैम सस्टेनेबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो सारे डिजाइनर्स के लिए, फिलोसोफर्स के लिए वो डिफरेंट है। मेरे लिए सस्टेनेबिलिटी इज लिविंग मिनिमली सस्टेनेबल। हम कितना, जितना मिनिमल रिसोर्सेज को यूज करें वो सस्टेनेबिलिटी है। तो बस मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि जितना मिनिमल हम रिसोर्सेज को यूज करें एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ें, वो ही सस्टेनेबिलिटी है। लिव मिनिमली सस्टेनेबिलिटी फॉर मी। Okay, all right. With that, Madhur, thank you so much for your time. It was great conversing with you, and I really hope that your idea takes to next level and eventually reach the final goal.
Thank you so much, Madhu. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for inviting me on your platform. That was Madhu Sharma. Thank you for watching this episode. As I always say, if you like this video then and want to watch more of sustainable environment related videos, then subscribe to Bullet on YouTube and follow us on the other social media channels. Till then, we say signing off, Nasima Khan, Bullet Pod.